Now, this is exercise question number 2.26. Exercise question number 2.26. इसमें क्या पूछ रहा है? If the density, see, if the density of some lake water is, ये density है 1.25 gram per ml and contain 92 gram of Na plus ion per kilogram of water, then calculate molality of Na plus ion, molality of Na plus ion. Clear? So now according to given information, atomic mass of Na plus is 23 and solution is equal to solute plus solvent. ये क्या है? B है और ये क्या है? A है. Here means weight of solute is 92, weight of solvent is again means 1000 gram. Weight of solute is 92 and इसमें क्या बोला? Per kilogram of water. Here per kilogram of water. तो this will be given. तो solvent हो गया. तो now molality is equal to weight of solute upon में molecular mass of solute, weight of solvent in kilogram into 1000. तो weight of solute कितना है? 92 ग्राम है. molecular mass कितना है? here 23. किसकी? सोडियम की बात हो रही है. and this is 1000. सॉल्व किया तो 4 मोलल will come. clear? here we can say that molality, तो molality of solution will be again we can say that 4:1 है ना. now next one, next जो क्वेश्चन आता है, here if the solubility product, तो solubility product का मतलब होता है KSP. if the solubility product of CuS is 6 into 10 raised to minus 16, calculate maximum molarity of CuS in aqueous solution. मैक्सिमम मोलारिटी. तो चलो, ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इसको बोलते हैं KSP. 6 into 10 raised to minus 16 is given. तो मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS in aqueous solution is equal to solubility of CuS in mole per liter. If S is the solubility of CuS, then CuS give us Cu plus 2 plus S minus 2. इसका भी मोलारिटी मतलब S लिया और ये भी S. Here we can say the concentration will be S and S. तो KSP is equal to Cu plus 2 and S minus 2. तो S into S, S square. तो here means S is equal to KSP आता है. तो S square is equal to अंडर रूट में KSP. क्लियर? अब क्या करने का? सब वैल्यू रखने का, सॉल्व करने का. तो मोल पर लीटर इज इक्वल टू, हियर मींस मोलारिटी विल कम. So this is second question. It means question number 2.27. In this question, concept of equilibrium will come, and in this question, concept of equilibrium will come. So suppose, see, if here formula of solute will changes, then method will also change. चलिए, यदि आपका फॉर्मूला चेंज होता है तो आपको एक सिंपल में फॉर्मूला बता देता हूँ. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि mx xy हियर m प्लस y x माइनस x. तो s इज इक्वल टू ksp x पावर x y पावर y 1 अपॉन में x प्लस y. क्लियर? तो व्हाट इज x एंड y? तो x एंड y इज वैलेंसी. x and y is valency of cation as well as anion. X and y is again we can say that valency of cation as well as we can say that anion. कल को देख, अभी जैसे यहाँ पे आपको चांस किस में लेना है? ऑक्सो एसिड. जैसे ये क्या है? ऑक्सो एसिड. तो यहाँ पे PO4 minus 3, CO3 minus 2, NO3 minus 1, and here we can say that OH minus 1, and fifth one is SO4 minus 2 is there. Clear? चलो, जैसे भी मैं यहाँ पे लिखूं MgCl2
x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगेन वी कैन से दैट 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज देयर। तो ये इक्विलिब्रियम में आता था, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3Cl। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बोलूं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन है, मास पर एस्पिरिन सी 6.5 ग्राम, दिस वन डिसॉल्व इन CH3Cl। तो सॉल्वेंट इज CH3Cl और here we can say that C9H8O4 is there। तो मास परसेंटेज 6.5 ग्राम, इसका वेट क्या है, तो 6.5 ग्राम आता है और ये आता है 450 ग्राम। क्लियर। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। हियर मास परसेंटेज इज गिवन but unit will be not specified, so therefore we are taking weight by weight। clear। तो चलो यहाँ पे मास ऑफ एस्पिरिन ये सॉल्यूट है 6.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 450 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो 450 प्लस 6.5, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड देन आफ्टर हियर नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो now we are putting in this value, तो 6.5 और नीचे 450 plus 6.5 into 100, तो 1.424% will come। क्लियर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि see if here we can say that percentage is given but here unit will be not specified, then consider weight by weight। तो देखो percentage weight by weight is equal to weight of solute in gram into 100 और नीचे क्या आएगा weight of solution in gram। क्लियर। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हियर सी वेट ये क्या होता है, तो दिस इज सॉल्यूट और ये क्या होता है सॉल्वेंट। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट के प्लेस पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट कुछ भी आ सकता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.29। हियर नेलोप्रीन formula is C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptom in narcotic users। Dose of neloprene generally given is 1.5 milligram। तो calculate mass of 1.5 into 10 raised to minus 3 molar aqueous solution required for the above dose। क्लियर हुआ कि नहीं। आपको क्या लेना है, तो आपको यहाँ पे मास निकालना है, मास है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो सी WB mass of neloprene is 1.5 milligram, तो 1.5 into 10 raised to minus 3 gram and here molar mass of neloprene is 311 gram per mole is given। ये दिया हुआ है आपको है ना। नेलोप्रीन मोलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, C19H21NO3, तो 19 here what will happen, C19 कार्बन 21H and 3O, तो 19 कार्बन का 12 है, 21 1, नाइट्रोजन 14 3 16, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो 311 ग्राम पर मोल विल कम। तो दिस इज मोलर मास ऑफ नेलोप्रीन। क्लियर। अब आता है फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। तो फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी में आपको क्या करना है पता है, सी फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
तो मोलालिटी कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ और वेट कितना है 1.5 इंटू 10⁻³। दिस इज मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना है 3.215 और सॉल्यूट कितना है दिस वन, ऐड किया तो 3.2165 ग्राम विल कम। यही है कैलकुलेट मास ऑफ डिस्पेंडी मोलल। तो हियर मींस मोलल सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब मोलालिटी विल बी गिवन। ये क्या है स्मॉल m, तो स्मॉल m का मतलब होता है मोलालिटी, स्मॉल m मतलब मोलालिटी इज गिवन। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो किसी का भी मोलर मास निकालना हो तो आपकी टिपिकल जो मेथड है वही लेके चलने का। हियर C, हियर H, हियर N एंड हियर O विल बी देयर। मल्टीप्लाई करके प्लस करो तो आंसर विल कम हियर। क्लियर? तो मोलालिटी आ गया है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए अमाउंट बोला मतलब वेट, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल 1.5 है ना। तो दिस इज वी कैन से दैट मिथेनॉल। तो चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर वी कैन से दैट कि क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ऐसा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो 2.30, तो चलो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन मीथेनॉल। तो देखो ये क्या है मीथेनॉल और ये क्या है, तो दिस वन इज बेंजोइक एसिड। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब आपको वेट निकालना है। क्लियर? प्रिपरेशन 250 ml। अब ये सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम कितना है 250 ml और मोलारिटी कितनी है तो 0.15 मोलर। क्लियर? तो चलो यहाँ पे क्या है सी, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन मोलारिटी इज 2.15, मोलारिटी इज here 0.15, वॉल्यूम इज 250 ml। तो here mb मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, तो कितना आएगा, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो चलो here बेंजोइक एसिड तो कितना कार्बन है 7, तो C6H5COH, तो C7H6O2, तो यहाँ पे 7 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 और ये 16, तो सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करो तो 122 ग्राम पर मोल। तो दिस इज मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका मोलारिटी का। तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वेट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन ml। तो देख मोलारिटी दिया हुआ है कितना 0.15, फिर मोलर मास 122, वॉल्यूम क्या है 250, फिर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 4.575 ग्राम विल कम। 4.575 here we can say that gram will come. So this is complete information. So this one is again with complete information of this one. देखिए इसको और यदि करना है तो देखिए मैंने मोलर मास बताया है ना, मोलर मास इधर पे वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू तो 0.15, यहाँ मैं सिंप्लीफाई करूँ और आपको कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हियर देखो यहाँ पे आपका क्या आता है, हियर 0.15 वेट ऑफ सॉल्यूट दिस इज 1000, नीचे 122 250, तो 0.15 122 250, नीचे आपका 1000 आ जाएगा
एंड दिस वन। तो 250 से ये 4 चला जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब 0.15 122 4। Here weight of solute is from calculator we can find out 4.575 gram. 4.575 gram. Clear? So this is simplification of question number 2.30. Now next one 2.31. Now we will discuss here 2.31. तो चलो जैसे यहाँ पे मैं पहले लिख दूं 2.31, तो here solution is solute plus solvent. तो solute is B and solvent is A. The depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid, है ना, and trifluoroacetic acid. तो चलो यदि मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, क्लियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड सी, दिस वन इज H, C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हियर trichloroacetic acid, and then after trifluoroacetic acid, here trifluoroacetic acid. क्लियर? तो चलो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, इधर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और दूसरे में क्या है, फ्लोरीन, हियर फ्लोरीन एंड देन आफ्टर फ्लोरीन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये दिया हुआ है। तो आपको द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व, तो सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट इज वाटर, एंड व्हाट अबाउट सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका देखो 1 2 3, इसमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एक एक करके। अब देखो यहाँ क्या है, सी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम, क्लोरीन ब्रोमीन एंड iodine. Electronegativity of fluorine is again we can say that maximum. Clear? So now this is because the acid strength of given acid will be, so first of all trifluoroacetic acid will come. Here we can say that 3 2 and 1 will come. So why trifluoro? Here means fluoro, here means chloro, and simple acetic acid. So we know that fluorine is more electronegative than chlorine. Electronegativity of fluorine is more. Here we can say that electronegativity of fluorine is more as compared to chlorine. So trifluoroacetic acid is stronger than trifluoroacetic acid. While acetic acid is weakest acid, greater the ion produced, greater is the depression in freezing point. ये लाइन याद रखने का। During ionization, तो greater the ion produced, greater is the depression in freezing point. Clear? अब मैं ऐसा बोलूं, acetic acid is weak acid, तो this one is again we can say that weak acid. So why this one is weak acid? So number 1, so due to presence of intermolecular hydrogen bond, and number 2, so due to presence of resonance. तो रेजोनेंस किसका, कार्बोक्सिल ग्रुप का, रेजोनेंस किसका, कार्बोक्सिल ग्रुप का। समझ में आया कि नहीं? तो रेजोनेंस इज अगेन रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं?